Uh, so, Assalamu अच्छा, alaikum everyone. Assalamu alaikum. तो thank you, Usman sir. So, uh, you have been so much around in this ecosystem, or you also give advice on digital economy to ADP, or managing director with IMP Septic. So, our the title explore the future of IT exports in Pakistan. So, I believe everyone over here, the audience, and myself as well, we have been reading about how the IT exports have been boosted in Pakistan over this entire fiscal year. Abhi khatam nahi hua, but till March, January, mein they said it dropped down to 13%, although I would like to know what was that reason. But overall, all in all, we had an export, some say 34%, some say 37%, but we know there has been an increase. Yeah. और अगर हम उसकी कुछ वजूहात देखें तो they said it's because of two main reasons. Firstly, State Bank ने retention rate foreign exchange का 50% I think कर दिया. That is one reason, and then the SIFC department that has been, facilitating the IT exports. So, firstly, to start the introduction of IT exports, please give some comments on all of this happening in the IT export industry of Pakistan. So, so thank you, Fazaf. Thank you for the time today. Thank you everyone for joining us. I'll be doing Urdu, English. मेरी दोनों ज़बानें इतनी अच्छी नहीं है, so I will probably switch between the two. Great. Now, what's happening? कि देखो, IT exports, the potential that we have seen is up to 45%, 47% growth inside in the year. So ये month on month नहीं है, ये year on year है. It's a huge number, huge differentiator when it comes into play. तो हम जब 20-21% की एक्सपोर्ट ग्रोथ देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं होते. We know that the margin is there and the potential is there. Potential is much more than this. Now, इसमें जैसे आपने कहा कि 2-3 एलिमेंट्स हैं, वो 2-3 एलिमेंट्स ये हैं कि जी कि 50% रिटेंशन कर दी है, which is good. But if you want to involve serious players, serious global players, you need to go to 100%. You need to become a normal country, and then we'll touch upon that in that conversation going forward. Plus, जो हम बात कर रहे हैं SIFC की, I think in the future SIFC जब अपना काम वाकई शुरू करेगी, तेज करेगी, कि actually making changes to the bureaucratic environment, and red tape and the limitations in other fields where we have a lot of uh, regulators, reducing those regulators, a regulatory modernization regime. That's what SIFC was built for, कि एक regulatory modernization regime implement हो, जल्दी इम्प्लीमेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, और बहुत सी चीज़ों को स्टीम रोल किया जा सके विद इन दैट, जो भी हमारी बिलावजी की रेड टेप्स आते हैं उसके अंदर, and make the process easy for privatization, for B, bringing more investment into the country, not just by privatization but by new initiatives as well. तो मेरा ख्याल है कि अभी SIFC ने अपना वो काम अभी तक शुरू नहीं किया, या हमें अभी तक उसके कॉन्टोर्स नजर नहीं आए होते हुए. सो आई एम होपफुल कि अगले 3-4 महीने में जब वो चीज़ हमें नजर आएगी, स्पेशली थ्रू PIA की प्राइवेटाइजेशन और थ्रू मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी रिजीम्स, रेगुलेटरी रिजीम्स का कम होना, उसको सुकड़ना, उसको फैसिलिटेशन रिजीम में लेके जाना, जब हमें ये सब चीज़ें थोड़ी नजर आना शुरू होंगी, then we be able to see कि भी SIFC ने वाकई अपना काम शुरू कर दिया. So I think अच्छा, we'll start with the conversation. Go ahead and we'll dive more deeper. no. So we have set the basis to talk about it. Although yes, I mean what I have been reading as well is that उसके जो ज़्यादा जो fruit जो हमें मिलेगा, that will be in the coming months. So, but you are saying like not to be so much impressed by the 37% increase of exports that we are hearing about in the news. 24% की है इस वक्त तक, अच्छा, previous year से compare.
मैं ये नहीं कह रहा कि we should not be impressed. मैं ये कह रहा हूँ कि we should. There is room now. There is room to go further. There is room. We have seen that not much, without doing much, you can go up to 40-45% growth. Even if you go up to 33% growth, 30% growth, within 3 years you're doubling the number. So अगर आप आज 3 बिलियन पे हैं और आप 30% ग्रोथ पे हैं क्यूमुलेटिव 3 साल तक, so you are actually going to be 6 billion, more than 6 billion within the next 3 years. Okay, how to do that? So we'll get into a conversation. We get into a longer conversation, and I'll take you through some slides as well while I'm talking. And so मुझे देख के बहुत ज़्यादा interest नहीं होता बहुत से लोगों को, but I think the slides will be more interesting. So I'll start the slideshow, if you allow me to. Sure. Sure. Okay. Have you shared? Yep, I think. Can you? Not yet. Okay. It says it is sharing a window. Farwa, can you guide us if you are the host? Are you guys? Can anybody see the slide? No. Let me No. inform Moses of the code so that he can be able to share screen. Sure, please do that. Make him the host, please. I'll do that. Just says. Acha, meanwhile, Ji. while we are sharing this, so this is something like इसके कोई भी just make me understand this के अभी Ministry of IT ने I was reading the cash price भी दिया है काफी बड़ी जो major players हैं IT में पाकिस्तान में I think a couple of months back they gave them cash prizes ये Systems Limited को 10 Pearls को and a couple of other ones. So the question that I got in mind was that जो टेक आपका स्टार्टअप सिस्टम्स हैं या आपके जो the ones who have potential to get to a size of Systems Limited in Pakistan, so why are they not encouraged to get this cash prize or to get these boosters from Ministry of IT? Sorry, can you repeat that question? I'm sorry, I was asking that all these big companies got this cash prize from Ministry of IT. कुछ नाम थे कुछ नाम थे IT companies का 10 Pearls हो गए Systems Limited हो गया and the likes of them. So I was wondering why not the tech ecosystem, the startup ecosystem got these cash prizes to boost their exports. Why just still the companies that have already done so much? So देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो कैश प्राइस का जो था कंसर्न था वो यही था कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट कंपनीज को दें ऑन द रेवेन्यू दैट दे आर ब्रिंगिंग इनटू द कंट्री और वो ताकि वो और इंटाइस हो और वो और पैसे लाएं. तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि 5% आप दे दें. जैसे कोई $100 लेके आ रहा है तो $5 उसको आप गवर्नमेंट उसको दे दे अपनी तरफ से. $5 में पीकेआर दे दे, $5 की इक्विवेलेंट पीकेआर दे दे उसके अकाउंट में. तो क्या है कि ठीक है मैं $200 लाऊंगा तो अब मुझे $10 की इक्विवेलेंट पीकेआर मिल जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ. अच्छा वो मैं बहुत उसके हक में नहीं हूँ और आई थिंक इट्स अ प्रीटी डम आइडिया टुडे. It worked until 2021 December, maybe until 2022 March. Now it is a pretty beat up idea. I don't think anybody should be doing this. And I tell you why. देखिए हर चीज हर आइडिया हर वक्त applicable नहीं होता. When we started this, we took the permission from the ECNIC and the cabinet and whatnot. That was September 2021. अच्छा अब एक बात समझने की है कि सितंबर 2021 में जो यूएस के फेड रेट्स थे वो यूएस के फेड रेट्स वर समवेयर अराउंड 1.5%, 1.2%, and that was a generational thing. मतलब हम बड़े हुए तो बैक इन 84, 85 जो पोस्ट वॉलकर एरा जिसको कहते हैं यूएस फेड का जो पोस्ट वॉलकर एरा था वहाँ पे फेड रेट 7-8% से कम होते होते 1.3% पे आ गए और वो 84, 85 से लेके 2022 March तक they were like this. So an entire generation grew up considering this is the reality, right?
Nobody ever thought, and people, people in US made a lot of money कि 1% के ऊपर और 1.2% के ऊपर आपको लोन मिल जाता है, उससे आप घर खरीदें, उसको किराए पे करा दें, किराए से घर का 1.2% पे करें, दूसरा घर खरीद लें, तीसरा घर खरीद लें. Literally, people have more than 100 doors today by doing this strategy, and people got immensely rich. सो आइडिया ये था कि जी ठीक है, अगर किसी को यूएस में कोई अगर $100 अपने यूएस के बैंक अकाउंट में रख रहा है तो उसको मिल क्या रहा होगा, उसको 1% मिल रहा होगा रिटेल रेट के ऊपर बैंक से. तो आप अगर उसको 5% देते हैं तो अपना डॉलर पाकिस्तान ले आएगा. 5% लेने के लिए 5% पीकेआर में देते हैं तो अपना डॉलर पाकिस्तान लाएगा. ग्रेट आइडिया, ठीक है, चल सकता है. But then when we started implementing it, तो आप समझें कि नवंबर 2021 से खबरें आना शुरू हो गई कि यूएस फेड इज नाउ थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द फेड रेट्स अप टू 5%, और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और 1-1.5 साल में वो 5% को जाके टच करेंगे. एंड दिस इज व्हेन आई गॉट रियली कंसर्न कि अगर मुझे बैंक में 5% यूएस में मिल रहा है तो मैं किसी को 5% पाकिस्तान में भी दे दूं तो वो क्यों लाएगा अपने डॉलर. बिल्कुल. इसमें डॉलर मोबिलिटी है, डॉलर के अंदर अमाउंट है. एंड देन अराउंड the same point in time our currency value started declining as well. So this was the time where it started going to haywire. 168 rupees to a dollar, it went up to 270 rupees to a dollar. और ये दोनों चीजें हो गई एक साथ. And then where I was completely against it कि अब ये नहीं करना चाहिए. This is like now giving people money without, मैं अगर आपको पैसे दे दूं और आप ले लें और आप DHA में बंगला खरीद लें, so IT इंडस्ट्री को क्या मिलेगा इससे, right? So free cash flow that I'm handing over, right? तो ये नहीं होना चाहिए. अगेन हमें हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए we live in a very dynamic world. जो हमने 1 साल पहले पॉलिसी अप्रूव की थी वो पॉलिसी जरूरी नहीं है चलेगी. और ये तो फिर एक जनरेशनल एलिमेंट हो गया ना कि हमने सोचा ही नहीं था जिंदगी में, हमें पता ही नहीं था जिंदगी में कि कभी हमारी आंखों के सामने, हम तो जब से पैदा हुआ 1.2% 1.3% फेड डिस्काउंट रेट देख रहे हैं. नाउ इट इज भाई 7.5% और 6.5% की बातें हो रही हैं. रिटेल रेट 8% है. अगर आप आज बैंक से लेने जाएं, यूएस बैंक से आप $100 लेने जाएं तो आपको $8 हर साल पे करने पड़ेंगे आपको. So now it does not make sense. तो मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ. और इससे बेहतर ये है कि मैं टैक्स में डिस्काउंट दे दूँ, मैं बाकी तमाम चीज़ें कर दूँ. मैं कंपनी से कहूँ कि अगर वो डॉलर ज़्यादा लेके आते हैं तो मैं ये पैसे देने के बजाय इसी पैसे से लोगों को ट्रेन करके उन कंपनीज के हवाले कर दूँ कि आप ये ट्रेन करके आप ये लोग रखें ताकि आप अगले साल में ज़्यादा रेवेन्यू लेके आएँ. एक नया बच्चा जो ट्रेन होकर आता है वो $10,000 अगले साल कमा रहा होता है. तो उससे ज्यादा बड़ा स्कोप ये हो सकता था कि मैं बिलियन रुपीस से मैं 1000 बच्चे ट्रेन कर लेता, 2000 बच्चे ट्रेन कर लेता, 3000 बच्चे ट्रेन कर लेता, और ये मैं इन 500 कंपनीज को दे देता. 5-5 बच्चे हर कंपनी को के पास होते प्रोफेशनल्स, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, प्रोफेशनल्स. तो वो प्रोफेशनल हर कंपनी को $10,000 ईच इंडिविजुअल लेके आ रहा होता. एवरी कंपनी वुड हैव मेड $40,000 मोर द नेक्स्ट ईयर. And if you have done this over 500 companies, so you can do the maths. तो इसका आउटकम बहुत ज्यादा हो सकता था ना, बजाय इसके कि हमने उनके हाथ में कैश पकड़ा दिया. So I'm against it, and I have my reasons. But somebody thought that they would benefit more from it. तो ये तो वक्त बताएगा इंशाअल्लाह. Correct. So please tell us the roadmap you were about to share with us. You stopped sharing the screen. Okay, can you guys see it? Oh, I think you can. No. Yes, now we can. Okay, great. Okay. So this is where we are at. Still, you can see it? Yes. Right. Okay, so today we are discussing about the future of Pakistan's tech exports and especially given what AtomCam does, AI. So what's the potential impact of AI and how ready are we and what should we do to get ready? तो ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, और इसका ये तकरीबन $7.14 ट्रिलियन का आईटी टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल इंडस्ट्री है, ये 2023 की प्रोजेक्शन है. नाउ इट्स अराउंड $8.5 ट्रिलियन. और उसमें से जो हर रीजन के अंदर जो हिस्सा है वो आपको नजर आ रहा है कि 33% इज यूएस,
2% is Canada, 5% is South America, so on and so forth. You can see 11% in Australia. तो ये global industry का इस वक्त आपको एक distribution नजर आ रहा है कि कहाँ पे Sorry, कितनी I'm cutting you, but I don't see India's export over here. नहीं वो ये पूरे एशिया का 14% जो है ना 14% Okay. ऑफ 8 ट्रिलियन पूरे ऑस्ट्रेलिया पूरे एशिया का है एंड देन जापान सेपरेटली इज 7%. तो ये इस तरह से है. मीना रीजन एंड अफ्रीका इज अराउंड 5%. वेस्टर्न यूरोप इज 19%, ईस्टर्न यूरोप इज 3%. ये इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है. दिस इज नॉट एक्सपोर्ट, दिस इज द ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. कितनी स्पेंडिंग हो रही है उस इंडस्ट्री के अंदर, ये वो कैप्चर कर रहा है. स्पेंड क्या है ऑल टुगेदर. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, yes. अच्छा, ये पिछले साल तक का हमारा एक्सपोर्ट का ट्रेंड था. आप देखें कि ये हम 2014 में 820 मिलियन, ये छोटा मोटा बढ़ता रहा 2020 तक 1.44 बिलियन पे आ गए. फिर हम अचानक हमने 47% की ग्रोथ देखी बिटवीन 2020 2021. $2.1 billion चला गया. फिर अगेन we had a limited growth but we still had a growth. आज के मुकाबले में उतनी ग्रोथ आज भी है जितनी उस वक्त थी. तो तकरीबन 2.61 बिलियन तक चला गया. लास्ट ईयर ये अमाउंट कम हुआ पहली मरतबा. कम कभी नहीं हुआ. लास्ट ईयर हम 0.5% नेगेटिव में चले गए. बहुत से रीजन थे. अगेन अगर आपका डॉलर 178 का है और अगले साल आपका डॉलर 278 का है तो आपको कम डॉलर लाने होंगे पाकिस्तान. So that depreciation worked against us. वो जो टेक्सटाइल वाले कहते हैं भी करेंसी की वैल्यू गिराते जाओ ताकि हम और सस्ते होते जाएं. That works until a certain level. उसके बाद वो आपका रिटर्न जो है वो कम होने लगता है एक्चुअली. एंड दैट एक्चुअली शोज यू दिस कि एक सर्टेन अमाउंट वैल्यू डेप्रिसिएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करने के बाद यू आर एक्चुअली इन नेगेटिव. तो ये हम हमेशा गवर्नमेंट को समझाते थे कि यार ये इस तरह से ना करें. इट्स नॉट फीजिबल बट यू नो वी हैव प्रेशर्स. Okay. This is a little bit interesting. I'm a bit surprised. We were projecting upwards during the COVID years. Yeah. And we had a jump in 2020 and 2021. What was the reason? सो देखिए, जंप का रीजन ये था, एक तो कोविड, एक तो ड्यूरिंग कोविड ईयर काम बहुत आया आपके पास. इंडिया वेंट इनटू शटडाउन, वी डिड स्मार्ट लॉकडाउन्स एंड दैट बेनिफिट आवर इंडस्ट्री केप्ट ऑन चगिंग व्हाइल इंडियंस जस्ट कंप्लीटली शट डाउन फॉर 3 months. तो वो काम एक आपके पास आया. उसके बाद देन द सपोर्ट, यू नो, फॉर्चुनेटली वी वर देयर टू एक्चुअली डू दैट सपोर्ट कि ठीक है यार, नया काम आया है, इसको अब लड़ाइयाँ कैसे करनी है. फॉर इंस्टेंस कोविड है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर छापे मार रहे होते थे आईटी कंपनीज के ऊपर कि जी कोविड है, लॉकडाउन है, आपने दफ्तर क्यों खोला हुआ है. सो वी वर इन दैट कमांडो मोड इमीडिएटली कि जैसे ही कहीं से इतला आई कि छापा पड़ा है, वी एक्चुअली वुड कॉल इंटीरियर मिनिस्ट्री कि इसको रोकें फौरन, जिसने छापा मारा है उसको बताएं दिस इज एन आईटी कंपनी और ये एसेंशियल बिजनेसेस, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर इसको हमने लिस्ट करवाया. हमने बताते थे कि ये एसेंशियल सर्विसेज है, ये बंद नहीं होगी, दिस नीड्स टू कंटिन्यू टू गो ऑन, सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम इमीडिएट एक्शन लिया करते थे, तो उसकी वजह से हमें इतना नुकसान नहीं हो पाया, बल्कि हमने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया. उसी वक्त में वी वेंट ऑन अ हाइपर ड्राइव टुवर्ड्स मार्केटिंग पाकिस्तान, टुवर्ड्स डूइंग ऑल द अदर एफर्ट्स, एंड यू विल सी देम during the course of the presentation that what we were doing and what was working, what wasn't working, so on so forth. तो जो डिक्लाइन आया वो अगेन दो चीज़ों की वजह से आया. एक, योर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी इन योर कंट्री, नंबर 1. नंबर 2, डॉलर का रेट अचानक 178 से 278 हो गया. तो एक रीज़न होता है ना कि मैं क्यों डॉलर लेके आऊँ, कल को और गिर जाएगा. मैं आज $100 लाऊँ कल को और उसको रुपए में चेंज करवा लूँ, तो और जो रुपए में चेंज हो गया तो वो कल को फिर 300 का हो जाएगा, फिर 400 का हो जाएगा, तो मैं क्यों डॉलर लाऊं. सो दैट्स द वरी. जब एक्सपोर्टर डॉलर को, जब रुपी को इतना डिक्लाइन होते हुए देखता है, तो उसके जहन में वरी आती है कि जी मैं और पैसे लाऊंगा, रुपए में कन्वर्ट करा लूंगा तो और वो बेकार हो जाएगा.
So this is why you see that downward trend. लेकिन अब वो दोबारा बढ़ गया है. Now you'll see another 24% growth. मैं आपको अभी next slide में दिखाता हूँ. So this is how it is month on month. ये हमने पिछले 5 साल को ट्रैक किया है, month on month किस तरह से बढ़ती है. ये totals वही हैं जो पिछले हमने आपको totals दिखाए. And you can see कि 27% growth during 2019-20, then 47% growth, then 23% growth, then minus 0.5% growth. और देन आपकी आज दोबारा 24% ग्रोथ पे वापस इंडस्ट्री आ गई है. दिस मंथ और द लास्ट मंथ वाज द हाईएस्ट मंथ एवर इन दीज नंबर्स. ये $310 मिलियन का नंबर काफी हाई है. और अगर आप मार्च और अप्रैल के दरमियान में देखें तो आप देखेंगे हर मार्च वाज हायर देन द अप्रैल. ये ट्रेडिशनल एक ये ट्रेंड था, क्योंकि लोग क्वार्टर के आखिर में पैसे ज्यादा लाते थे, फिर क्वार्टर के अगले 2 महीनों में पैसे कम लाते थे. तो ये ट्रेंड आपको हर जगह नजर आ रहा है. लेकिन ये पहली मर्तबा, ये देखें, ये ट्रेंड पहली मर्तबा, now rather than lesser money, it has brought in more money. So this is a good omen. This is a good activity for the industry कि ये बढ़ा है इस साल. तो हम ये ख्याल करते हैं कि अगले 2 महीने another 320 million और 300 million आएगा जून में और मई में. तो this number would cross 3 billion for the first time. और ये बढ़ रहा है और अल्लाह करे और बेहतरी से बढ़े. अच्छा, इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है the Saudi investment, the Saudi all the eyes are on Saudi. अभी कुछ न्यूज में लिखा हुआ था कि लीप से काफी, जो लीप अभी गुजरी है उससे काफी $80 million या billion के projects were signed or deals were dealt. I doubt it, क्योंकि देखिए ना, लीप तो अभी मार्च में हुई है और आप पिछले 1-1.5 साल से देखिए टेक बिजनेस 4 से 5 महीना लेता है खत्म होने में प्रोजेक्ट. तो 4 से 5 महीना आप प्रोजेक्ट खत्म करेंगे, पैसे आएंगे आपके पास वहां पे, फिर आप यहाँ पे लाएंगे. it's a lag of good 6-7 months. तो वो 6-7 मंथ का लैग अभी मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी बिजनेस रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है. Probably in about 2-3 more months it will start reflecting, क्योंकि वो मार्च में खत्म हुई है. सो मार्च इज हेयर. तो अभी वो यहाँ अनलाइकली है ये इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आना 6-4-5 मंथ्स में आएगा. अच्छा जी, फिर आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? सो हमने देखा जी, यूएस इज स्टिल आवर बिगेस्ट कस्टमर एंड दिस आवर बिगेस्ट वरी दैट यू आर मोस्टली अ वन कस्टमर शॉप. सो यूएस इज 60%. इंडिया का भी ऐसे ही है. इंडिया में यूएस इज 50-55% एंड देन द spread is similar. UK is 5.95%, UAE is 7.37%, Switzerland, interestingly, is here at 2.99%, Singapore is at 3.98%, and the rest of the world is at 22%. अच्छा, ये बिजनेस किन किन डोमेन्स में आ रहा है? सो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जो आप मिनट्स बेचते हैं दुनिया में, जब जो कॉल्स आपके 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 पास लैंड होती हैं, तो जब होती है तो आपके टेलकोस उस कॉल के पैसे चार्ज करते हैं. जो लैंडिंग पार्टी जो यूएस में जो टेलको है, उसकी कॉल अगर पाकिस्तान के टेलको पे आ रही है तो वो पैसे चार्ज करते हैं. तो ये वो अमाउंट है, ये वो इसको हम एक्सपोर्ट सम में लाते हैं. ये तकरीबन 14% है. 2.6 का 14% ये है. Call centers at 7%, freelancer services at around 17%. Last year it went down to around 13%, 12-13%. ये 2020 या 2021 का ग्राफ है. मैंने अपडेटेड ग्राफ मेरे पास है नहीं. I just wanted to show you the breakdown किस तरह से. Software consultancy and development is around 62%. This has now gone up to 65%. This now has fallen back to 13%. उसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. So this is to give you an idea पैसे आ कहाँ से रहे हैं, किन डोमेन में आ रहे हैं, क्या चीजें हैं जो चल रही हैं. अच्छा, now this is the most interesting of all these graphs. Now imagine this is the trade balance of your services sector. आप जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं सर्विसेज की, तो आपका ट्रेड बैलेंस सर्विसेज में क्या है, कितने पैसे आपके पास आए, कितने डॉलर आपके पास आए और कितने डॉलर आपके पास से गए हैं. सो ये जो ग्रीन है वो डॉलर आपके पास आए हैं और जो ब्लू है वो डॉलर आपके पास गए, जो आपके पास से गए. तो आप देखेंगे जो 2 सेक्टर्स हैं जो सर्विसेज के अंदर, अदर बिजनेस सर्विसेज, ये कंसल्टिंग है जहाँ पे लोग जो है वो बिजनेस कंसल्टिंग कर रहे हैं और बाकी सर्विसेज दे रहे हैं.
कोई कोई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा है, सो ऑन सो फोर्थ, ये सारे वो कंसल्टिंग है, और ये टेलीकॉम, आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सो देखिए ये दो सेक्टर हैं आपके पास जो ट्रेड सरप्लस में है। बाकी आप हर चीज उठा के देख लें कि छोटा बिजनेस है, काफी छोटी ट्रेड है, और ये देखें ये आप ट्रेड डेफिसिट में है, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवल में आप ट्रेड डेफिसिट में, ये आप वो जो एमिरेट्स के टिकट खरीद के दुनिया भर जा रहे होते हैं, ये वो है, ये वो नुकसान है। ये वो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और कम पैसा मुल्क में आ रहा है। अगेन दैट्स बिकॉज हाउ PIA इज पैथेटिक in its service and its quality and all that, so I wouldn't want to travel on it, and hence ये नुकसान आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये नुकसान कैसे मुल्क को नुकसान दे रहा होता है। वन कह बैड तो रहे हैं जून में प्राइवेटाइज हो जाएगी। आई होप कि हो जाए, जान छूटे, और ये हमें एक बेहतर सर्विस मिले हमारे मुल्क की। मतलब मैं अगर इस्लामाबाद से फ्लाइट लेके डायरेक्ट UK जा सकूं तो मेरी बहुत से मसाइल हल होते हैं। मैं क्यों बीच में 6 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे गुजारूं। सही बात। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, सो ये आपकी जितनी भी सामान गुड्स आ रही हैं, वो जो गुड्स आते हैं उसके लिए जो आपको किराए का पैसा देना है, ये भी सर्विस कहलाती है ना। ये आप एक सर्विस ले रहे हैं किसी से, तो वो जो गुड्स आ रहे हैं आपके मुल्क में, उसके जो आप किराए के पैसे दे रहे हैं डिनाटा को, मर्स को, ग्लोबल शिपिंग कंपनीज को, क्योंकि आपने अपने PNSC का बेड़ा गर्क कर दिया। आपके PNSC के पास 86 जहाज होते थे 1988 में, आज 28 जहाज हैं, 28 वेसल्स हैं। तो अब आप अपनी फिर PIA भी, अगेन आप PIA के थ्रू भी जो एयर शिपमेंट करते हैं वो भी आप कम कर रहे हैं, डिनाटा और DHLs और FedEx and Maersk and all these companies are doing this for your country, so you are actually paying them, so this money is actually going out. तो आप देखें कि आप सिर्फ दो इदारों का बेड़ा गर्क करने से आपके मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है सर्विसेज सेक्टर के अंदर। लेकिन अब ये जो नुकसान होता था, ये जो ट्रेड डेफिसिट सर्विसेज सेक्टर में होता था, ये तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स का होता था। ये IT, टेलीकॉम एंड अदर बिजनेस सर्विस की वजह से ये कम होकर 700 मिलियन डॉलर्स का रह गया है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड बैलेंस इतना आपके हक में चला गया है कि ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट सर्विसेज का कम हो गया। तो आपके पूरे मुल्क का, यानी कि जब आप ये इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। आपके पूरे मुल्क का एक तो ट्रेड बैलेंस है ना, ये इसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों को मिला लें अगर, तो आप तकरीबन 36 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। 70-80 बिलियन डॉलर के दरमियान में आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके मुल्क का ट्रेड डेफिसिट अगेन तकरीबन आपका 40-41 बिलियन डॉलर है। उन 40-41 बिलियन डॉलर में से 30 बिलियन डॉलर, यानी कि ये हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट। अब 30 बिलियन डॉलर आपकी जो फॉरेन पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, वो बेचारे रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो बाकी जो लोग हैं, वो 30 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो ये एक और पॉजिटिव हो गया आपके पास। तो 40 बिलियन डॉलर, 45 बिलियन डॉलर आप नेगेटिव में थे, 31 बिलियन डॉलर एक और पॉजिटिव ऐड हो गया। तो अब जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि आपके आपके पैसे बाहर कितने गए और आए कितने, जब हम टोटल देखते हैं जिसमें ट्रेड है और जिसमें रेमिटेंस है सब मिलाकर और एक इंपोर्ट है, तो वो अब इस वक्त 11-12 बिलियन डॉलर के नेगेटिव पे खड़े हैं। तो अगर IT इंडस्ट्री ये 85% ट्रेड सरप्लस है, अगर ये इंडस्ट्री 17-20 बिलियन डॉलर पे चली जाए एक्सपोर्ट के, तो 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस आ जाएगा आपके पास। ये जो 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस होगा, ये आपके पूरे मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइप ऑफ कर देगा, जीरो हो जाएगा। आप पॉजिटिव में चले जाएंगे, करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएंगे। आप जब IMF के पास जाते हैं, आप ये करंट अकाउंट के पैसे लेने जाते हैं ना, कि आपके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, बाहर सर्विसेज लेने के पैसे नहीं है, अब आप क्या करेंगे, आपको डॉलर चाहिए, IMF आपको डॉलर देता है, तो आप अपना करंट अकाउंट सरप्लस सीधा करते हैं, करंट अकाउंट आप अपना सीधा करते हैं। सो इफ यू आर इन करंट अकाउंट सरप्लस, योर कंट्री विल चेंज, योर कंट्रीज थिंकिंग विल चेंज। सो हम ये कहते हैं कि ये 20 बिलियन डॉलर तक क्यों नहीं जा सकता। अगर इंडिया 200 बिलियन डॉलर पे है, तो उस्मान साहब को क्यों मुबारकबाद दी जा रही है 2 बिलियन डॉलर करने पे। उस्मान साहब को उठा के फेंक देना चाहिए कि आप 2 बिलियन डॉलर पे क्यों है। सो हम जो खुशियां मनाते हैं, वी एक्चुअली बी कंसर्न, शुड बी कंसर्न कि यार ये 20-25 बिलियन डॉलर पे तो कम से कम होना चाहिए ना। और अगर ये होगा तो दिस कैन एक्चुअली चेंज योर एंटायर कंट्री, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग IT एक्सपोर्ट्स अबव ऑल अदर एक्सपोर्ट्स, कि कोई एक्सपोर्ट इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर सकती
कोई एक्सपोर्ट का इतना ट्रेड सरप्लस नहीं है जितना इसका है। ये दोनों चीजों को अगर आप फैक्टर इन करो तो यू रियलाइज कि विद इन 3, 4, 5 years we can actually change the country just by doing that. It's very powerful. Thank you. So तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि not just it is growing fastest, not just it has the most trade surplus, it is spread across your country. So this is the number of companies, SECP registered companies across your country. This data dates back to 2022. मेरे पास पिछले 2 साल का नहीं है distribution. लेकिन look at this, look at what is happening. आप छोड़े कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को, ये तो expected number है. Look at Multan. You have roughly 300 companies in Multan. You have 113 tech companies in Sialkot. कोयटा, जहाँ पे कुछ और नहीं है, कुछ भी नहीं है कोयटा में, जहाँ पे आप जाएं और you can't expect anything decent. You have 104 tech companies back then, right? अब तो शायद ये 130, 40, 50 होंगी. Bhavalpur, look at Gujarat, look at Wakand, Mardan, Jhang, look at that, 22 tech companies. तो इसका ये मतलब है कि जो लोग जहाँ से बैठे हुए हैं, सखर में 20 टेक कंपनीज हैं, जो लोग जहाँ से बैठे हुए हैं वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं. इस इंडस्ट्री को कोई बड़ी सड़क नहीं चाहिए, कोई पोर्ट नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए. एक अच्छा ट्रेन बच्चा और प्रोफेशनल, उसके साथ 10-15 और ट्रेन प्रोफेशनल्स, एक लैपटॉप, उनके चंद लैपटॉप्स. That's it. That's what And you running internet. and a running internet probably. See, that's what it is. And और ये हम इतनी तेजी से इसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसमें limitations बहुत कम है हमारे पास. So that's why these 3 things combined would give you hope कि यार this can actually be something great. और उसके अलावा सोचें, अब आप ये सोचें कि विहाड़ी में जो 32 टेक कंपनीज हैं, ठीक है, ये विहाड़ी के अंदर ये जो बच्चे, ये कल को 60-70 हो जाएं, ये बच्चों की तादाद जो लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स, ये 3, 4, 5, 6 हज़ार तक चली जाएं, तो इन 5-6 हज़ार लोगों की डॉलर इनकम विहाड़ी में आ रही है. इनकी रिटेल की रिक्वायरमेंट, इनको जीन्स खरीदनी होगी, इनको टी शर्ट खरीदनी होगी, इनको पिज्ज़ा खाना होगा, इनको बैंक चाहिए होगा, इनको TCS चाहिए होगा, इनको इंटरनेशनल ट्रेवल करना होगा. All of this would add up to the economy of Vihari. किसी ने पिज्जा शॉप खोल ली है, किसी ने कुछ और खोल लिया है, किसी ने कोई और, TCS को आना पड़ेगा, बैंक्स को अपनी ब्रांचेस लानी पड़ेंगी. सो ये जो सेकेंडरी इकोनॉमी उसकी वजह से जनरेट होगी, बिकॉज यू हैव नाउ वाइट कॉलर जॉब्स इन बिहारी, जहाँ पे आपने और कुछ नहीं किया आज तक. वहां पे अगर आपने वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये सेकेंडरी इकोनॉमीज आना शुरू हो जाएंगी, उसकी वजह से बिहारी की इकोनॉमी चलना शुरू हो जाएगी. So October takes in, who knows? So if you combine these 3 slides together, you understand how important this is for the country. So next, तो हमने क्या किया जब when we looked at that, और मैं ये this is a 2 minute video. I would just very quickly play it, और मैं 2 minutes का wait नहीं करूँगा, just skip it, and you will see कि हमें अंदाजा हुआ कि जी अगर हमें इनको यहाँ पे और ग्रो करना है इंडस्ट्री को, तो हमने टेक्नोलॉजी हब्स खड़े करने होंगे यहाँ पे, स्पेशली छोटे शहरों में, ताकि, और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को कन्वर्ट करना होगा. कोई खाली टूटी हुई फैक्ट्री है, कोई टूटा हुआ रेलवे मामला है, हमने इन चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा. आर्मी का बैरक है, वो भी हमने कन्वर्ट किए हैं. एक स्कर्दू में एक बिल्डिंग थी टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूटी फूटी हुई, वो भी हमने कन्वर्ट की. सो अगर हमने इन चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इनटू टेक्नोलॉजी सेंटर्स, तो वहाँ की जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनको एक साथ बैठने का मौका मिल जाएगा. जब आप एक फिनटेक की कंपनी, एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी के साथ बैठेगी, तो दोनों काम निकाल लेंगे. So have a look at this. I'll continue to skip it. I won't run the whole thing. I don't want to bore you guys with that. In the heart of Pakistan's technological revolution lies a network of innovation hubs, software technology parks by PSEB. Karachi to Lahore, Islamabad to secondary cities. These hubs are rewriting the nation's digital narrative, powering economic growth, one innovation at a time.
Crafted from the remnants of the past, these parks offer state-of-the-art facilities, driving Pakistan's IT and ITES exports towards a targeted $10 billion revenue milestone. With 25 software technology parks established by Pakistan's Software Export Board, PSEB, across cities like Karachi, Lahore, Islamabad, and other cities. Partnership with Pakistan Software Export Board for setting up firms जो हैं, ना सिर्फ इनके थ्रू हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, जी, इस तरह का export of 28 million US dollars. It's around 1.4 billion Pakistani rupee in domestic revenue. बहुत सारी हमारे ही मुकाबले की हमारी जैसी कंपनी वर्क कर रही है जिनके साथ जो है हम ग्रो कर सकते हैं और इससे ज्यादा सबके लिए आपने फाइट करना है. Geniusly crafted by converting public and private spaces into tech-enabled offices. This initiative, designed to provide affordable office space to IT and ITES companies, has not only fueled the growth of the tech industry, but has become a catalyst for economic development, revolutionizing infrastructure, empowering innovation. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना अच्छे तरीके से एकदम से इस इंडस्ट्री में आई है, ये From dilapidated structures to cutting-edge tech hubs, software technology parks provide the infrastructure backbone for Pakistan's digital transformation. By repurposing existing spaces into dynamic centers of innovation, these parks not only reduce costs, but also contribute to sustainable urban development, revitalizing communities and driving progress. इंडस्ट्रीज जो है वो अपने आईटी के वर्क्स में जो है वो Opportunity, STPs are not just creating jobs, but also preventing brain drain by anchoring IT talent in local communities. With more than 7,000 employees currently working within these parks, they have additionally generated 3,000 to 4,000 direct and indirect job opportunities, significantly contributing to the growth and sustainability of Pakistan's IT exports. स्पेशली यंग जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट Empowerment and comfortable working environments. The ratio of female employees in these parks has increased, providing women with easier access to facilities and opportunities for career advancement. एसटीपी की वजह से ही बहुत सारी गर्ल्स का आप कहने के यहाँ पर रुझान आया है. काफी ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, फीमेल्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वो आराम से यहाँ काम करती हैं. As Pakistan surges forward in the fourth industrial revolution, software technology parks stand as beacons of innovation, driving economic growth, empowering women, and empowering the nation. The journey has just begun, and the potential is limitless. Okay. So उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से छोटे प्रोजेक्ट्स हैं. So उसके साथ साथ we started bigger projects as well. और ये कराची के अंदर एक IT पार्क बन रहा है which is roughly 1.2 million square feet of office space. इसी तरह से इस्लामाबाद में जोंग के ऑफिस के साथ एक IT पार्क बन रहा है which is roughly around 600,000 square feet of office space. तो ये बड़े ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप you expect the Oracles and the Microsoft world to come in. These are level 5 health and safety level 5 building जो उनकी requirement होती है. तो ये उस तरह के infrastructures हैं which have started constructing, we started developing those. तो ये भी साथ साथ में बनना शुरू हो गया. Now अब हम आते हैं थोड़ा सी conversation towards. So ये तो आपको अंदाजा हो गया कि हम क्या काम कर रहे हैं. इसके अलावा तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है. HR के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी कंपनीज के थ्रू ट्रेन करा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके ट्रेन करा रहे हैं 6, 7 and 8 सेमेस्टर के बच्चों को. यूनिवर्सिटी के टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं इनटू न्यूअर सॉफ्टवेयर, न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर प्लेटफॉर्म्स ताकि वो यूनिवर्सिटी में अच्छी कन्वर्सेशन कर सकें बच्चों के साथ. ये हम बूट कैंप्स करा रहे हैं. सो ये सब तमाम सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है ये करा रही होती है. तो ये तो मामला अपनी जगह पे हैं. जो हम सप्लाई साइड पे जो काम कर रहे हैं और फिर हम डिमांड साइड पे जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ें हैं. ये हमें हर चीज़ चाहिए. Now let's talk about a bit of future. If you guys want to take a break or you want to ask a few questions, this is a good time. We can keep it interactive. I don't
for you? I don't want to continue talking. I think let's take one question from the audience and then we can continue. Chief Please. Faraz Sab. Acha. So he has muted itself. I think we should carry on. Okay. So ये चीजें हो गई. अब what's happening with the future? Look at where the industry is going. So if you look at it, ये equity market cap है 2023 का और 2030 का, और हम ये देख रहे हैं कि नॉन इनोवेशन इंडस्ट्री जो है वो $98 ट्रिलियन मार्केट कैप है, और जो डिसरप्टिव इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 19 ट्रिलियन का मार्केट कैप है. टोटल 117 ट्रिलियन का मार्केट कैप हम 2023 में देख रहे हैं. और हम ये देख रहे हैं कि एनुअल ग्रोथ ऑफ नॉन इनोवेटिव इक्विटी जो है वो 3% है और डिसरप्टिव इनोवेशन की 42% है. हम 2030 में देख रहे हैं कि 140 ट्रिलियन की नॉन इनोवेशन सेक्टर रह गया. डिसरप्टिव इनोवेशन सेक्टर जिसमें इमर्जिंग टेक है, आपकी इंडस्ट्री 4.0 है, और जो चीज़ें आ रही होंगी फ्यूचर के अंदर, एनर्जी से रिलेटेड, DNA सीक्वेंसिंग, AI, ब्लॉकचेन, robotics, and you see the size that AI has in all that. तो ये तकरीबन $360 ट्रिलियन पे चला जाएगा. और इसके अंदर AI 37% होगा. एनर्जी एंड स्टोरेज, सॉरी ये ग्रोथ रेट है, तो ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है अंदर. आप 37% का एनर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ग्रोथ रेट है, एनर्जी स्टोरेज पे 50% का ग्रोथ रेट है, so on so forth. So you see, why do you want to be in this industry? Why the country should be in this industry? Why should we look towards that? Because the opportunity is here. Now let's start analyzing जो एक मेजर डिसरप्शन जो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ टाइम में अब हमारे सामने आ जाएगी, वो है जी जनरल AI या GAI जिसको हम कहते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस होती है. कि जब आप जब लिमिटेशन जिसको आप 2-3 वर्ड्स उसके और भी हैं, हम कहते हैं कि when AI is actually thinking with itself, it starts reasoning. When it starts reasoning, this is a general AI. Have we touched upon that concept, Fiza, during our conversations and in our course thus far? I believe we have in our AI boot camps. Okay. So जनरल AI ये है कि मैं AI से कहूँ कि मैं उसको सारा डेटा फीड कर दूँ कि इस वक्त दिन है, and it can still challenge me and tell me कि नहीं जी इस वक्त रात है, आपने जो डेटा फीड किया वो गलत है. So when it starts to have a mind or a conscious of its own, that's where we see the general AI has been achieved. And that's where we see कि हम कहते हैं कि जी इंसानों को बड़ा खतरा हो जाएगा, जनरल AI तो सारी रीजनिंग करना शुरू कर देगी. मगर मैं एक CEO हूँ और मेरी कंपनी में AI इम्प्लीमेंटेड है, तो AI will start challenging me कि उस्मान साहब आपके तो सारे आइडियाज और सारे प्लान बिल्कुल बकवास हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए. और फिर बोर्ड उठा के मुझे फायर कर देगा कि उस्मान साहब आप AI ने आपको फायर कर दिया, अब आज से AI हमारा CEO है. So this can happen. This will happen in our lifetime. And so what happened is 2020 में हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जनरल AI 50 साल में अचीव होगा. This is when OpenAI announces GPT-3. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि जी थोड़ा सा आगे चला 2021 तक मामला, हमने कहा कि जी 34 इयर्स में अचीव हो जाएगा. फिर दिखाया जी गूगल डेमोन्स्ट्रेटेड कन्वर्सेशनल एजेंट्स लैम्डा 2, उस वक्त हमने कहा जी 18 साल लगेंगे. चैट GPT लॉन्चेस टू द पब्लिक, ये 21 का दिसंबर है. ठीक है जी, उस वक्त हमने कहना शुरू कर दिया, थोड़ा सा और आगे आया, चैट GPT-4 आ गया, हमने कहना शुरू कर दिया जी अभी भी 8 साल लगेंगे. तो अगर यही हमारा जो एरर है ऑफ फोरकास्टिंग, अगर ये चलता रहा, तो लोग कहते हैं कि 2026 में जनरल AI आ जाएगा. और अगर फोरकास्ट ऐसे ही रही 8 साल, तो फिर वो 2030 में आएगा. लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि वी आर ट्रैकिंग समवेयर बिटवीन दिस रीजन फॉर जनरल AI टू बिकम अवेलेबल. अगर बहुत और भी कुछ डिसरप्शन हो गई, तो यू मे प्रॉब्ली सी मिड ऑफ 2025 फॉर जनरल AI टू बिकम अवेलेबल और बी अनाउंस्ड कि जनरल AI अचीव हो गई है. So what do we do in these 6 years? If you be lucky if you get 6 years.
and we'll talk about what is going to happen and what is actually happening, and then we think about what should we do in that 6 years or this 3 years or 4 years that we have left. Acha ji. So now this is what look what has happened already. You look at the cost of authoring the written word. ठीक है जी. तो कहते हैं जी लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर पिछले 20 साल से पिछली एक सदी से और आप अगर इस टाइम में देख लें तकरीबन 1000 लफ्ज लिखने की जो प्राइस है वो $100 है. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि 1000 वर्ड लिखने की प्राइस $100 है. ये कॉस्ट ऑफ ऑथरिंग द रिटन वर्ड है. ठीक है. सी व्हाट हैज हैपेंड. What has happened right after the announcement of GPT-3? 1000 वर्ड लिखने की कॉस्ट GPT-3 के यूज करने की कॉस्ट के बराबर आ गई. So it has dropped from $100, it has dropped down to 4 cents. Wow. Right? So ये कहता है कि Claude 2 जो है वो और या GPT-4 जो है वो $0.16. It has dropped down to 16 cents. और in Claude 2 के केस में it has dropped down to 4 cents. जो मैं पिछली दफा भी बात कर रहा था, ये नहीं होगा कि जॉब खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा कि काम खत्म हो जाएगा. काम एक्चुअली बढ़ेगा, लेकिन काम का रेट इतना नीचे चला जाएगा कि then you won't be bothered doing that job. अब जो काम करने के आप $100 कमा रहे थे, और ये दिस इज अ कंसर्न फॉर आवर फ्रीलांसिंग सेक्टर. हम क्या कर रहे थे? हम फ्रीलांसिंग लोगों के असाइनमेंट्स कर रहे थे, वेबसाइट्स लिख रहे थे, असाइनमेंट्स लिख रहे थे, हम इस तरह के सारे काम कर रहे थे, हम वेबसाइट का कंटेंट जनरेट कर रहे थे. This has now gone down to 4 cents. Would you still be willing to do it? No. Absolutely not. So this is where it is. Now we have to start rethinking कि जी जो हम 12-13% फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं आईटी एक्सपोर्ट का, उसका क्या होगा? That's concern number 1. Remember that. Now, अब आती है जी आपकी कॉल सेंटर इंडस्ट्री. I would want you to listen to this. Hello. Good morning. This is Jordan from MedHealth Center. We have some great newly added benefits to offer for Medicare in our current open enrollment. Can we talk for a minute to make sure you're not missing out on anything? I already have all that. I have my Advantage benefits. I have everything that I need, but I do appreciate you coming and checking to make sure. Thank you, dear. You have a good day. All right. I understand that, but I would recommend that you must check your entitlement with us again. What we do here is help you get additional Medicare benefits that you might be missing, like dental, hearing, vision, prescription coverage, and food card from leading 27 insurance companies at absolutely no cost. All I need is to confirm your eligibility. So do you have Medicare Part A and Part B? I have all of that, sir. Okay. Okay. I get it. But we are here to provide free information about the Open Enrollment 2024 and help you compare your benefits among 27 leading insurance companies. Our licensed agent is on the line, and I would strongly suggest you review your options with him. Before that, I would just like to confirm your age. Could you please tell me how old you are? 76. Okay. So that's it. I have checked your basic eligibility at my end. Now I am transferring your call to our senior supervisor who will help you explore your benefits in detail. Please bear with the music for just a moment. Thank you. Okay. So guys, what has happened? The conversation that you have just heard is between a human being and a bot. Yeah. Now, the bot, if I wouldn't tell you it's a bot, you wouldn't be able to recognize. The bot is right now working on a CPU-based machine. And in future, you will have the bot. And actually right now, this company has upgraded this bot to be now working on a GPU machine. So this bot will even get even better. And you probably would not be able to tell. Now, the bot does not go for a break. His girlfriend does not leave him. He's not sad. He's isn't cranky. He is not Human asking- complexities nahi hai usko. Absolutely, everything is gone. Right? Now imagine
द कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो हम कह रहे थे 7% है हमारी आईटी एक्सपोर्ट का, उसका क्या होगा? By the way, ऑब्सोलीट हो जाएगी। एब्सोल्युटली, सो ये आप हाँ। जरूरत नहीं रही। सो एक कंसर्न ये है, चलें आगे चलते। Now look at what is happening to creating 3D assets. ये 3D assets create करने की कॉस्ट है गेम्स के लिए। आप गेम्स के लिए एक 3D, लेट्स से आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो गेम आपके गेम में फीचर होनी है, एक कैरेक्टर है, एक एवेटार है जो गेम में फीचर होना है। October 21, before the launch of GPT, October 21, the price that you were asking for was somewhere around $400. $400 का आप एक एसेट बनाते थे। Look at this, what has happened? Less than 100 Less than 6 cents. cents, 6 cents, yes. So it has come down to 6 cents. तो आप हम बना रहे हैं गेम डेवलपमेंट और हम ये सारे 3D एनिमेशन डिजाइन एंड व्हाट नॉट, this has what happened. So again, another challenge. So the three things that we thought about: freelancing, call center, game design, animation, whatnot, AI has, what will happen? The work will increase significantly. You will have the entire world converted into a digital asset or a digital twin, but the cost of doing that would decline sharply. So would you be doing that work जो आप पहले $400 में कर रहे थे वो अब आप 6 सेंट में करेंगे? मेरा नहीं ख्याल मैं करना चाहूंगा। So अब this is तो where, इतनी आ गई है प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन एआई में, अब तो you just write it and it's created for you. correct. Yeah. So that's another challenge. Acha, so what is happening now in the VR domain? So VR domain के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जी VR मार्केट, हमने कहा कि हम VR के लिए एसेट्स क्रिएट करेंगे या बाकी सब चीजें करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि VR उतनी तेजी से नहीं इस एक्सपेंड कर पाया। ये 5 साल के अंदर ये है कि कितने आईफोन्स बेचे थे VR, जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो पहले 5 साल में कितने आईफोन्स बिके थे? ये हंड्रेड्स ऑफ, ये मिलियंस हैं, 150 मिलियन के करीब आईफोन बिके थे। और हम कहते हैं कि जी मेटा क्वेस्ट कितने बिके हैं? वो तकरीबन आपको 28 मिलियन के करीब मेटा क्वेस्ट बिके हैं। सो VR hasn't been able to ramp up as quickly as the mobile phone industry did. Similarly, iOS apps इस वक्त तकरीबन 5-5.5 लाख के करीब iOS apps हैं iOS के ऊपर, और अगर आप VR की अगर आप मेटाक्वेस्ट की एप्स देखें तो 2200 के करीब मेटाक्वेस्ट की ऐप है इस वक्त ऐप स्टोर के ऊपर। तो अगेन दिस मार्केट इज स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड। ये जो आप इमर्जिंग टेक्निक और जो मार्केट कहते हैं AR VR is slightly lagging behind the rest of the markets. Why do you think that is? Because use cases इतने mind blowing नहीं है. And number two, the headset is still not there. It's a वो भारी है, वो कुछ महंगा। अभी एक एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस किया, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम। किसने? एप्पल ने। जी, एप्पल का भारी बहुत है, महंगा भारी बहुत है, $3500 का है। आप 20 मिनट से ज्यादा उसको अपने सर पे नहीं रख सकते, आपकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, सिवियर दर्द शुरू हो जाता है। So that's why I think the technology would take its time, और वो थोड़ा सा वक्त लगेगा before it gets to that, और जहाँ पे वो components उसके छोटे हो जाएंगे, it will just become a glass. MetaQuest is a better use case because MetaQuest has become a glass, or near to a glass sort of situation. It's much lighter, much cheaper. और अभी Apple का जो Vision Pro 2 आ रहा है, I've heard that its price point will go down to $1,300 and probably be slightly lighter as well to wear. Anyway, so we just looking at कि हो क्या रहा है। So हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज AI में क्या हो रहा है, AI कैसे इम्पैक्ट कर रही है, 3D एनिमेशन में क्या हो रहा है, AR VR में क्या हो रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है। लुक एट के लिए ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है। ब्लॉकचेन में आप कह रहे हैं कि जी आपके जो $8 बिलियन का 2023 में $10 बिलियन का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है, which is expected to shoot up to $450 billion
by 2030. So there's a lot of advantage, there's a lot of room to grow over there in the blockchain industry, and not just Bitcoin. Forget the coins. Talk about the actual implementation of blockchain on financial assets, on tokenization of assets, on central bank digital currencies, creating smart contracts. आपके और आपके किराएदार के दरमियान में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वो रोक नहीं सकता. जैसे ही फलां तारीख आएगी उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर वो नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाएगा. आपको उसके घर भागने की जरूरत नहीं है, और इसकी बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली कोर्ट को नोटिस चला जाएगा, और कोर्ट को 3 नोटिस जाएंगे तो कोर्ट से ऑटोमेटिकली पुलिस तक एक नोटिस चला जाएगा उसकी एविक्शन का. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग ऑटोमेटेड, और आपको कोर्ट केस में 3 साल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है अपने किराएदार को एविक्ट कराने के लिए. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. There's similar tens of similar other examples of that. So you see कि the blockchain industry में क्या हो रहा है. Keep an eye on that. You guys are professionals, so you have to choose your profession going forward. और इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को इसी तरह से ग्रो करना चाहिए, हमारे बिजनेसेस को. अब हम ये बात छोटी सी कर लेते हैं कि again, so now we'll take a break here. Anybody has a question to ask, please feel free before we move on to the last section. Okay, so before I open the stage for questions, just want to say please stay clear to the point or direct short सवाल पूछें. अहमद, बताएं आपका सवाल क्या है? अहमद? जी अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा सवाल ये था सर कि आप जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट के सिलसिले में और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन एक अहम मसला ये नहीं है सर कि हम विद इन पाकिस्तान जो हम बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर सकें. उसकी वजह ये है कि हमारे वो इदारे या सरकार जो कि सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है और लोगों के मुख्तलिफ काम करती है, मुख्तलिफ इदारे, उनमें अभी भी वही 1857 की चीज़ें चल रही हैं, वही फाइल वर्क है, वही कागज़ है. इवन मैं प्रेसिडेंसी का एक टेंडर देख रहा था कि उस टेंडर को जमा कराने के लिए वो पूरा पेपर वर्क का एक तवील प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा. तो अगर हम वाकई में सर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं और अपने इधर इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज को लोकल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले. और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की अपनी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त सिमत में जाए, और ये जो पेपर वर्क है ये खत्म हो, तो ये खुद बहुत ही वो इकोसिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जहां पर लोगों को लोकल बिजनेसेस से एक्सपर्टीज डेवलप होगी, जिसको वो बाहर के मुल्क में और बाहर उसको एक्सपोर्ट भी सब्सिक्वेंटली कर सकेंगे, जैसे नादरा ने किया सर कि पहले उसने पाकिस्तान में किया और फिर उसने अपनी एक्सपर्टीज को बाहर भी एक्सपोर्ट किया. मेरा ये जस्ट कॉमेंट था सर कि अगर हमने एक्सपोर्ट को सही मानों में आगे लेकर जाना है तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो जब तक हम नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट अपनी असल लेवल पर नहीं पहुंच सकेगा. जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि करंट अकाउंट क्या फिगर है और बाकी क्या चीज़ है. Okay. Any other questions? जी फातिमा, बताएं. Ji, I wanted to ask 2 questions. What are the basis of the statistical analysis that Sir Usman has just shared? Point number 1. And my point number 2 is, if we look at the growth over the period of time, there have been revolutions. Hamare eatery habit mein revolutions aayi. We moved towards fast food very quickly, and then now we are moving back and organic is better, organic is good, and everything. I just want to ask, as experts, do you think that there will be a going back from AI as well? Because for now, maybe the writing skills, the soft skills, the human skills are not that much in demand because of AI. But there will come a point where humans will again feel the need कि नहीं, हमसे फिर एक गलती हो गई. We have compromised the brains of our generations. We have compromised the learning abilities of our generations. And now we should take a step back and go back towards organic forms of teaching and learning, or maybe training the brain or stuff like that. So do you think that is a possibility? Okay. Thank you. Any other questions? Are we
Let me just first answer these two. सबसे पहले तो हम अहमद का क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. देखिए अहमद, there is a economic situation within this. When you are becoming a software developer or an AI expert or whatnot, you're becoming this because you want to earn more and quickly. That's one of the major reasons of people coming to this particular industry, and there's nothing wrong with that. That's absolutely right. वो जो डॉलर इनकम आपको बाहर से आती है, लोग प्रेफर करते हैं उस पर काम करना. अगर मैं आपको कह दूं कि आपके मोहल्ले की किरियाने की दुकान को आपने डेटाइज करना है और वो अंकल जो हैं वो 26,000 रुपए दे रहे हैं इस काम के, probably would not be interested unless this becomes a national initiative. Similarly, जो आपकी local government के payment issues हैं, जो local government के सारे efforts हैं, so if you have a team of 30 software developers, out of which 20 are data scientists and 10 are image analysts, and then you have smart people who can work in projects which are earning you euros and dollars. Why would you want to deploy the same team to earn PKR? And even that is not valued. कि मैं कल को आपको पैसे ना दूं, आप पे ऑडिट खोल दूं, आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूं, ये सब कुछ होने ना भी हो तो भी मैं आपकी पेमेंट ना करूं. Would you be interested in getting that sort of business? So first of all, इंडस्ट्री का अपना इंटरेस्ट नहीं है. आप जिस तरफ आप कह रहे हैं, हमने सिनेरियो ऐसे बनाए हुए हैं कि इंडस्ट्री का अपना इंटरेस्ट नहीं. This requires a major datization effort across the country, and not just doesn't stop at the government. Actually, datization of the SMEs. You have 5 million SMEs. अगर आप 5 million SMEs को डेटाइज करें तो ये आपके मुल्क के GDP में $60 billion इंक्रीज कर देंगे हर साल. That's 1/5 of your GDP added to your GDP every year. 20% of your GDP added to your GDP every year. So huge opportunity there. But the question is that then we have to have a program which actually ensures payment, to small tech companies to bring their software, and smaller tech companies to come and integrate them. कि ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, मैंने आयरलैंड में बेचा हुआ है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कुछ और नहीं कर रहा, मेरे पास उसके राइट्स हैं, ठीक है जी, मैं आपको दे देता हूँ, आप ले जाएं इसको और डेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें. और कोई तीसरी चौथी टेक कंपनी मुझे इसके पैसे दे दें. जो आप हर दफ़ा जब भी आप एक किरियाने का स्टोर लगाए तो मुझे 50,000 रुपये दे दे. एक छोटी टेक कंपनी जाए, उसको इंटीग्रेट कर दे किरियाने के स्टोर के पास, उनसे 20,000 रुपये ले ले. अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं आता तो दैन इट्स वेरी हार्ड. आप ना अच्छे रिसोर्स डेडिकेट करेंगे इसके ऊपर, ना कुछ और होगा. दूसरी हमारी बहन का सवाल था कि क्या हम वापस जाएंगे एआई से. बिल्कुल नहीं जाएंगे. एआई से आप बिल्कुल वापस नहीं जा सकते. उसकी वजह ये है, और आप किसी दूसरे आप आज भी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और आप नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिफरेंस देखें तो आई थिंक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट मोर देन 4% ऑफ द नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग. नॉन ऑर्गेनिक आपके मुल्क में कहत पड़ता था 1950s में, जब आप अपना बीज इस्तेमाल करते थे गेहूं के वीट के लिए, तो गेहूं के लिए जब आप अपना बीज इस्तेमाल करते थे आपके मुल्क में कहत पड़ता था, लोग मर जाते थे हर साल. 1954 से आप अमेरिकन बीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको हम कहते हैं ना खालिस गंदम. तो आपके यहाँ कोई खालिस गंदम नहीं है. आप 1954 से जेनेटिकली मॉडिफाइड गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज. सो नो, वी उस जेनेटिकली मॉडिफाइड गंदम के अंदर X number of chromosomes ज़्यादा हैं for that leads me towards diabetes, heart problems as well. लेकिन despite of those issues, आप वापस नहीं जा सकते, because you can't just match the scale of the two. If you do this, you will then force a lot of people into hunger and a lot trade-offs है ना ये. ठीक, ट्रेड ऑफ है. अच्छा, सो चलें आगे चलें. सो हम देखेंगे कि टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ मुल्कों ने क्या किया. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल. हमने कुछ चीजें देखनी है, मिला के करनी है, और हमने आगे बढ़ जाना है. आयरलैंड की एग्जांपल ले लें. आयरलैंड ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लो करके 12.5 कर दिया, हमारा 29% है.
आयरलैंड ने 70 मुल्कों के साथ डबल टैक्स ट्रीटी की। अच्छा, हमने भी 60 मुल्कों के साथ डबल टैक्स ट्रीटी की हुई है, लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया सही से। आयरलैंड ने 25% टैक्स क्रेडिट देना शुरू कर दिया। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर होता था उसका 25% टैक्स में आप वापस ले लें। आयरलैंड ने जो अपना टैक्स का रेट है वो 6.5% कर लिया फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो भी गेन टैक्स या जो भी टैक्स लगता था वो उन्होंने 6.5% पे लाके रिड्यूस कर दिया। उन्होंने एग्जेम्पशन दिया डिविडेंड एंड कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। कि मैंने एक कंपनी बनाई, आज तो वो कंपनी $0 की है, कल वो कंपनी मैंने $6 मिलियन में बेच दी, तो $6 मिलियन और $0 के दरमियान मैंने $6 मिलियन कमाए, लेकिन मुझ पे कोई टैक्स नहीं है कैपिटल गेन का। हम 23% लेते हैं और 25% लेते हैं इन सम केसेस। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, सप्लायर और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के अंदर। फर्क क्या आया? In 2010, they were on the brink of economic collapse. Their economy completely melted down. They started all these efforts, they started all these initiatives and all these incentives. Within 4 years, they became the fastest growing economy of European Union. 1000 से ज्यादा यूएस टेक कंपनीज ने अपने रीजनल हेड ऑफिस खोले वहां पे, इंक्लूडिंग एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर। और आयरिश आईसीटी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 1,05,000 लोगों तक हो गई बाय 2014। अगली एग्जांपल देते हैं, वियतनाम ने सैमसंग को अट्रैक्ट करने के लिए सैमसंग को 0% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया 2013 तक। 2013 के बाद आज तक उन्होंने 10% दिया, और अब वो बढ़ा के 15% कर रहे हैं। लेकिन उनका जो यूजुअल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो 20% पे है। हमारा यूजुअल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 29% पे। उन्होंने लॉन्ग टर्म लैंड लीज दी सिग्निफिकेंट लोअर प्राइसेस के ऊपर, फास्ट कॉर्पोरेट सेटअप की इन्वायरमेंट दिया उनको, ऑपरेशनल ईज दिया, एजुकेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया सैमसंग के साथ। फर्क क्या पड़ा? 2009 में जब ये पूरी एफर्ट शुरू हुई थी तो वियतनाम का जीडीपी 99 बिलियन था, वो बढ़ और उसकी जो एक्सपोर्ट थी वो 59 बिलियन थी। सिर्फ 5 साल में वियतनाम का जो जीडीपी बढ़ के 360 बिलियन हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज, और उसकी एक्सपोर्ट $400 बिलियन हो गई, दैट इज 8 टाइम इंक्रीज। और उसका जो ट्रेड सरप्लस था वो $40 बिलियन का हो गया। हमारा ट्रेड सरप्लस, हमारा ट्रेड डेफिसिट, आपको अभी याद मैंने बताया $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उनका ट्रेड सरप्लस है $40 बिलियन का। सैमसंग वियतनाम की इकोनॉमी में 20% एक्सपोर्ट वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक 18 बिलियन की कर चुका है, और 1 लाख से ऊपर लोग सिर्फ सैमसंग वियतनाम में एम्प्लॉयड है। Amazing. स्वीडन ने क्या किया? स्वीडन जब 4G ऑक्शन कर रहा था 2009, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये तीनों केसेस 2009 के मैंने आज अभी नोट किया। So this is when a transitional shift was happening in the world after the global financial crisis, 2009. This is what these countries were doing. तो स्वीडन ने कहा कि जी 4G ऑक्शन हो रहा है, हम $1.7 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पे 4G ऑक्शन, स्वीडन जैसी हाई इनकम, हाई रेवेन्यू, हाई मार्जिन कंट्री का, उन्होंने कहा जी हम $1.7 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पे देंगे। और उन्होंने एक शर्त लगाई कि जिसको भी लाइसेंस मिलेगा उन्होंने स्वीडन के चप्पे चप्पे पे उन्होंने 4G फैलाना है, इंटरनेट हर हाल में उन्होंने देना है, हर जगह पे हम इतनी कम प्राइस पे दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 2017 में जब 4G ऑक्शन किया तो पाकिस्तान ने $29 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पे सेल किया। इंडिया ने $12 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज पे सेल किया। आप देखें इन दोनों के मुकाबले में, देखें स्वीडन की प्राइस $1.7 मिलियन। उसका फर्क क्या आया? बिटवीन 2010 एंड 2014 स्वीडन की 4G कवरेज जो है वो 2% से बढ़ के 70% हो गई, और हर 10% इंक्रीज पे 0.8% जीडीपी इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी $436 बिलियन की इकोनॉमी थी, जीडीपी था 2009 में, जो बढ़ के $586 बिलियन का हो गया 2014 में। और इसमें से $26 बिलियन जो है वो मोबाइल कवरेज की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। स्वीडन क्या करता है, $1 बिलियन ले लेता बहुत से बहुत एक दफा लाइसेंस लेने में, लेकिन फिर वो ये नहीं कर सकता था जो हुआ। 1 बिलियन के बजाय $26 बिलियन का इम्पैक्ट आया 5 साल में, बिकॉज ऑफ देयर स्मार्टनेस इन लोअरिंग द स्पेक्ट्रम प्राइसेस।
तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। हम हमारे मुल्क भी ये लॉन्ग टर्म सोच सकता है, ये तमाम सब चीज़ें दे सकता है कंपनीज को। हमें क्या करना है, हमें नेशनल एचआर को स्किल करना है, हमें मास्टर ट्रेनर्स बनाने हैं, बूट कैंप्स करना है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरवेंशन करनी है, 2 साल की एसोसिएट डिग्री शुरू करनी है जो 2+2 ईयर्स हो। कि 4 ईयर की डिग्री को 2 साल भाई उस्मान साहब अफोर्ड नहीं कर सकते, 4 साल की डिग्री उस्मान साहब को कमाने जाना है, उस्मान साहब की फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो उस्मान साहब 2 साल की डिग्री करें, उसमें उस्मान साहब को सारे टेक्नोलॉजी स्किल सिखा दिए जाएं पहले 2 साल में अपफ्रंट। उस्मान साहब एसोसिएट डिग्री लें और जाएं जाके सिस्टम लिमिटेड में जॉब करें और कमाएं 2 लाख रुपए और अपने वालिद की हेल्प करें, अपने अपने घर पैसे दें, बहनों की शादियां कराएं। 6 साल के बाद उस्मान साहब को ख्याल आए कि यार मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे फुल डिग्री चाहिए, जाएं 2 साल और जाके वो जो होती है पाकिस्तान स्टडीज और ये वो जो कुछ होती है वो पढ़ें, और 2 साल वो सब पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, बिजनेस पढ़ें, और 4 साल की डिग्री पूरी करें और उसके बाद मौज करें। अगर हम ये कर देते हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो यंग प्रोफेशनल्स लेडीज दे वुड गेट इनटू दिस डोमेन कि अच्छा जी ठीक है, मैं जल्दी से अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ, मैं दे कैन गेट मैरिड एज वेल, क्योंकि अक्सर जो छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम होती है कि 4 ईयर डिग्री कम्स राइट बिटवीन द मैरिएबल एज ऑफ अ फीमेल। तो एंड इसीलिए नॉट जस्ट दैट, जिस तरह आपने 2+2 को डिवाइड किया है, द एक्चुअल अगर कुछ स्किल सिखा भी रहे हैं तो वो आखिरी 2 साल में सिखाते हैं या आखिरी साल में सिखाते हैं। और एग्जैक्टली पाक स्टडीज और इंग्लिश और इस्लामियात जी हाँ कंपल्सरी जो है वो आपको शुरू में सिखाते हैं वो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो आप उसको पीछे पुश ऑन कर दें, जो काम की चीजें हैं जिससे जिससे बंदा कुछ पैसे कमा सकता है, धंधा कर सकता है, तो वो उसको आप आगे ले आए। It's all about how you actually position it. फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस है, आपको आपको टेलको इंफ्रास्ट्रक्चर 4G 5G चाहिए, फाइबर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनना शुरू हो गए। वी स्टार्टेड दिस एफर्ट बैक इन 2020 और आपने देख भी लिया वीडियो में, इट्स नाउ अक्रॉस द कंट्री। तो वो काम हो रहा है, STZs बन रहे हैं, एयरफोर्स के नेस्टैब्स बन रहे हैं, आर्मी अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, सो दैट्स हैज स्टार्टेड टू हैपन। लेकिन उसके साथ टेलको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स की रेडीनेस आपको रखनी चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए पैसे आपको लाना ले जाना आसान करना चाहिए, फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, कोर्ट में केस हो जाए कंपनी के खिलाफ 6-6 साल 10-10 साल केस चल रहा है, गोरा नहीं बर्दाश्त करता ये तमाम सब चीजें, वो कहता जी फारिग करें करें कंपनी में, हम जा रहे हैं यहाँ से। 3-3 महीने के अंदर आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। टेक इंडस्ट्री के लिए सिंगल वर्टिकल फैसिलिटेटर होना चाहिए, बजाय इसके 18 इदारे आपके आके आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कागज मांग रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, पेनल्टीज लगा रहे हैं। उसकी जगह एक सिंगल वर्टिकल फैसिलिटेटर होना चाहिए जिसके अंदर तमाम सारी चीजें हो, एचआर भी हो, वर्क एनवायरनमेंट भी वही देखे, उसकी KPIs हों कि जी इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, टैक्सेबल इनकम बढ़नी चाहिए, नए लोग एम्प्लॉय होने चाहिए, एम्प्लॉयज की प्राइस बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। उसकी KPIs हो सकते हैं, वो एक सिंगल वर्टिकल फैसिलिटेटर आप बना दें और आप कहेंगे कि टेक इंडस्ट्री को आज के बाद से कोई टच नहीं करेगा, जस्ट वन फैसिलिटेटर, इसी के थ्रू सारा काम होगा और कुछ नहीं करना। आपकी पेरोल टैक्सेस, इनकम टैक्स आपने देखा 29% पे, उसको IT इंडस्ट्री के लिए या ओवरऑल मुल्क के लिए आपको कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान 29% टैक्स रेट के साथ सबसे कम इनकम टैक्स कमाता है फ्रॉम कॉर्पोरेट, $10 बिलियन। पाकिस्तान के मुकाबले में बाकी मुल्क जो है वो $50-60 बिलियन कमाते हैं। आपके रीजन के अंदर उनका टैक्स रेट कम है और एक्चुअली टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। हमने टैक्स रेट 29% पे देखा है, टैक्स कलेक्शन कम हुई भी है। पेरोल टैक्स आपका 32% तक चला जाता है, इसको कम करके 10-15-5% तक होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ड्यूटी ऑन टेलको एंड क्लाउड इक्विपमेंट की इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी हमने रखी हुई है, क्यों रखी हुई है कोई रीजन नहीं समझ में आती। उसको कम करें, फॉरेक्स हैंडलिंग को कंट्रोल को सीधा करें ताकि लोग पैसे लाना ले जाना आसान कर सकें। HR और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टैक्स ब्रेक्स दें। बैंक लोन आपका 3% का कोटा आपका होना चाहिए, एक्सेस टू कैपिटल। इस वक्त सारे SMEs को आपके बैंक्स 4.2% जो टोटल लोन देते हैं उसका 4.2% SMEs को देते हैं। सिर्फ टेक इंडस्ट्रीज का 3% का कोटा होना चाहिए। टेक कंपनीज को आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए आसानियां होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं। आपको मार्केटिंग करनी है ऑन द डिमांड साइड, कंट्री ब्रांडिंग होनी चाहिए 10 डेस्टिनेशन कंट्रीज के अंदर।
पब्लिकेशन एंड मीडिया पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस डेवलपमेंट होना चाहिए, आईटी आपके ट्रेड एसोसिएट्स के थ्रू बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. सम ऑफ द थिंग्स आर लिस्टेड हियर. अब हम बात कर रहे हैं कि जी इन द फ्यूचर एक आइडियल टेक कंपनी क्या होगी. सो हम कहते हैं कि एक आइडियल टेक कंपनी वो होगी जो एंड कंसिडरिंग एआई का इम्पैक्ट, तो हम कहते हैं कि आइडियल टेक कंपनी ये हो सकती है कि जो क्लाउड कंसल्टिंग करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटरप्राइज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे, एंटरप्राइज सिस्टम यानी कि ईआरपी सीआरएम सॉरी और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस पे काम करे, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, डाओ, डीफाई, डिजिटल ट्विन्स, एक्सआर, एआर, गेमिंग, इन चीज़ों पे काम करे, साइबर इम्यूनाइजेशन या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कोड क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, पीसीआई कंप्लायंस के ऊपर. सो दीज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग. तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमने लर्निंग की सारा कि भाई अब हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, दिस लुक्स के लिए अब आपकी उस लर्निंग के बाद यू रियलाइज के दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंपनीज दैट यू शुड बी बिल्डिंग व्हिच शुड हैव कैपेसिटीज, दीज कैपेबिलिटीज सेट्स. या अगर आप इनमें से एक एक कंपनी भी शुरू करना चाहते हैं तो आप एक एक सेपरेट कंपनी इनमें से शुरू कर सकें, और ये डोमेन में आप जाएंगे तो आपको इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी एआई के डिस्ट्रप्शन की नहीं होगी जितनी बाकी डोमेन में हो रही है. So this presentation, you have any other further questions, please? Before, so हमारे पास थोड़ा सा time भी कम है. So, so Usman साहब, the thing is, of course, at an individual level, अब ये जो यहाँ पे जो हमारे participants भी हैं, and a company like an organization like AtomCam, which gives these skills, AI skills, हम of course tax policies और foreign exchange policies को हम नहीं disrupt कर सकते, वो तो these things are sort of out of our hands. So ये लोग जो हमारे audience में, what can they do to boost the IT sector in the country, या individually क्या कर सकते हैं, या startups किस तरह ये बना सकते हैं, like what's the way forward for us? देखिए जो काम आसान है वो, अब ये जो मुश्किल काम है ये पाशा, पीएससीबी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये जंगें लड़ रही होती हैं आपके लिए. You would not know, but even till yesterday this was happening. Yesterday was a major meeting happening in the Prime Minister office, और ये चीज़ें मुसलसल ये एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं इन चीज़ों को सही करने के लिए. It's not that we are oblivious to it, या खाली उस्मान साहब बता रहे हैं बाकी को नहीं पता. The stakeholders know this. पाशा बहुत एफर्ट कर रहा होता है, तो ये काम हो रहे हैं. आप लोगों ने क्या करना है, you need to choose your avenues of services or products smartly. When you are going to go out, don't fall into that trap कि मैं कुछ सस्ता काम कर लूँगा, वेबसाइटें बना लूँगा. Nobody is interested in that. Nobody is going to pay you for that. Even if they are willing to pay you for that, that will be peanuts. So you have to be now become smarter and smarter कि आपने किन domains पे काम करना है, value create करनी है, effort करनी है, and plus as professionals you have to be brilliant in terms of your ethical values. जो हमने जो डिमांड साइड पे सर्वे किया, तकरीबन 200 क्लाइंट्स का 10 मुल्कों में, यूएस, यूके वगैरह के अंदर, स्वीडन के अंदर, उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की वर्क एथिक्स अच्छी नहीं. So true. और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, आपको किसी ने काम बताया, तो मसला ही कोई नहीं, हो जाना, कल कर लो, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई कर देगा. सो दैट माइंडसेट, वो जो भाई कर देगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिस नीड्स टू एंड. You need to now start realizing when you assess a project, you start understand कि भाई ये कह देना कि मैं 2 हफ्ते में कर दूंगा, वो प्रोजेक्ट 6 महीने का है, मैंने 3 हफ्ते की गारंटी ले ली है, definitely you are going to fail just because आपको लगा कि क्लाइंट शायद चला जाएगा, मैं इसको झूठ बोल के प्रोजेक्ट पकड़ लूँ, तो not gonna work. प्लस आपको पता है कि प्रोजेक्ट $20,000 से कम का नहीं है, आपने कहा कि बस यार आज पैसे डॉलर पकड़ लो, आज $15,000 में कोट कर दो, नहीं होने वाला $15,000 में, आपको पता है, डोंट डू इट. ये तो माइंडसेट चेंज करना है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कमिटमेंट, ओवरनाइट. हाँ, इंसान बने, जैसे इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, इंसान बनना. दूसरा आप ये तमाम सारी चीजें देखते हुए भी आपको एक $20,000 का प्रोजेक्ट मिला हुआ है,
एक और $25,000 का प्रोजेक्ट आया, आपने सब चीजें छोड़ी इधर फेंकी और आप $25,000 वाले प्रोजेक्ट में चले गए कि यार वो ज्यादा आ गया, वो $5,000 तो ज्यादा मिल रहा है, उसको पहले टाइम दो. So if you can't take a project, don't do it. If you can't take it, if you can't deliver it on time, don't miscommit. If you can't deliver it at all, don't assume that you will. तो ये सब झूठ अपने आप से बोलना छोड़ दें, क्योंकि आपकी हमारी इन हरकतों की वजह से ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. आप आज आपके पास अभी कॉल आ जाए कि ये एक नाइजीरियन प्रिंस है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवानी है, वो $50,000 दे रहा है आपको, आप वो कॉल उठाएंगे? आपका 90% ख्याल ये होगा ये वही नाइजीरियन स्कैम है जो ईमेल पे आता है कि ये. तो नाइजीरिया, just because of some people's stupidity, they have branded themselves. Even वो genuine काम भी करना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं, उनके पास genuine लोग भी हैं, आपसे बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, they face this difficulty. Just because some people's miscommitment, some people's scamming has completely destroyed their reputation as professionals and as a professional country. Same will happen with you. Same will happen with us. Stop doing this. You are smart people. Value yourself. आप पाँव रख के खड़े हो जाएं कि जी सॉरी, मैं ये काम $30,000 से कम नहीं करूंगा. End of conversation. मैं ये काम 6 महीने से पहले नहीं करूंगा. And you will see the Gora client would actually love you for that. They would actually respect that. They were truthful. They never miscommitted. They never underdelivered. They said what they would do. They told us कि हम ये वाला काम नहीं कर सकते, हमारा डोमेन नहीं है, हम करते नहीं है. आपने कहा हाँ ये भी ले आए कर देंगे, साइबर सिक्योरिटी भी करेंगे. नहीं आता आपको, बोल दे नहीं आता. So meanwhile, while other things are happening, please focus on number one, A, creating the right value set for yourself, B, being ethical. That's the only thing that we request of you. No, yes. This was wonderful. By the way, I did not want this to even stop. Very informative session. Thank you so much for this. एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, काफी कमेंट्स में लिखा हुआ है कि presentation शेयर कर लें, सब चीजें कर लें. So I just want to tell this to everyone. This is a public webinar, and this is an intellectual property of Mr. Usman. So just join all these webinars and get the knowledge. हर चीज पे presentation मांगने की जरूरत नहीं होती. Just get the knowledge and search yourself. खास चीज नहीं थी. You have to realize कि मैंने क्या कहा है कि यार जो काम हो रहा है वो $100 से कम होके 4 सेंट पे आ गया है. जो आप 3D वाला काम कर रहे थे वो $400 से कम होके 6 सेंट पे आ गया है. जो काम कॉल सेंटर इंडस्ट्री तबाह होने वाली है, डोंट गेट इनटू दैट. फ्रीलांसिंग करनी है तो स्मार्ट कामों पे करें. एआई वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप एआई की इम्पैक्ट से बच सकते हैं, वो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं. क्योंकि हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर बिजनेस की सेटअप डिफरेंट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं. सो एआई का इम्प्लीमेंटेशन ऑन दैट साइड इज स्टिल couple of decades or still a decade away, as per my understanding. Maybe I'd be proven wrong, and I'd be happy to be proven wrong how fast the industry would move. But उस्मान साहब, एक और बस आपसे advice लेनी है. So for the people who are very new to these webinars and to Atom Camp, we are essentially an edtech, and we give trainings in data science and AI mainly. तो हम वही skill set provide कर रहे हैं, which we believe is the need of the hour right now, along with professional development series. So any advice for someone like us who is doing this, who's filling in the gaps of the skill? थोड़ा सा क्लाउड सिखा दें लोगों को, इम्प्लीमेंटेशन करना आता है. You know, once you know a bit of cloud and a bit of AI, a lot of AI and a bit of cloud, you will be a superstar yourself. आपको किसी A lot of AI and a bit of cloud. A lot of AI and a bit of cloud. Okay. If you understand कि क्लाउड पे डिप्लॉय कैसे करना है, मैं अगर ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का बैकएंड कैसे डिप्लॉय करना है, इसकी राउटिंग स्विचिंग कैसे करनी है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है क्लाउड के ऊपर. If you only know this, I don't want you to master it. Know this, because if somebody is working for you, you should be knowing कि वो क्या कह रहा है मुझे, वो क्या करने का काम कह रहा है, कि कितनी देर का काम है, वो मुझसे मिसकमिट तो नहीं कर रहा, वो मुझे ओवरचार्ज तो नहीं कर रहा, क्लाउड की कॉस्ट कितनी आती है, मैं कस्टमर को क्या कॉस्ट दूंगा,
या दूंगी. सो ये तमाम सब चीजें थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा क्लाउड पे फोकस करें साथ साथ AI के, so if you are a full techie, then I believe this will help you a lot. Full deployment तक. Yes. मतलब नॉलेज ऑफ डिप्लॉयमेंट, नोइंग कि जी डिप्लॉयमेंट कितनी कॉस्ट करती है, कितना टाइम लेती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कौन कौन से प्रोफेशनल्स चाहिए मुझे डिप्लॉयमेंट कराने के लिए, सिक्योरिटी में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या करना है, डेटाबेस कौन सा चाहिए, बैंडविड्थ कितनी चाहिए होगी, प्रोसेसर कौन सा चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं. यू कैन लर्न विद जस्ट 3 months or 2 months of cloud knowledge. You can start familiarizing yourself with that. Okay, great. No, this was great. By the way, we retained our attendance at 60 for 1.5 hours, which is amazing. Thank you so much, Usman Saab. You guys are really sad souls. You No, this is so good. You're not sad, all of you. God help you. Take care, guys. Take care. Bye. Allah Hafiz. Thank you, Ji. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.